अरे मैं हमेशा तुम लोगों के लिए हूँ यार, कोई टेंशन नहीं क्या बात है सर। है। आई एम बॉर्न फॉर यू। वाओ। It is very rare to hear an actor appreciating their audience to this level where we feel so included in your journey. It's very overwhelming, honestly. I feel very starstruck, which is rare. But yes, today I feel very starstruck कि आज आप हमारे साथ हैं नहीं, और बहुत अच्छा लगा। ये सच भी है हितार्थी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जो एक्टर्स इतना इतना अकड़े हुए रहते हैं, जी मेरी मेरी समझ में नहीं आता है ये किस बात के लिए इतनी अकड़ है इनकी। मेरी समझ में नहीं आता सचमुच, है ना। जी जी। मुझे लगता है कि फैंस भी उतने ही बड़े होते हैं जितना बड़ा एक एक्टर होता है। क्या ओके। बात। और इसका रीजन बहुत साफ है कि वी आर एक्टिंग फॉर देम। ओके। सो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हु इज माई एंड यूजर। ओके। मेरी जो सर्विसेज हैं हितार्थी, उसका एंड जी, यूजर कौन है बताओ। उसका एंड यूजर मेरा फैन आपकी है ना, फैंस और ऑडियंस। है ना। तो ये जी तो वही बात हो गई कि मैं मान लीजिए कोई दुकान खोल के बैठा हूं, ठीक है। जी जी और जो मेरा ग्राहक आता है, मैं उसको भाव ना दूं, ये तो वही बात हो गई। क्योंकि जो मेरा बिल्कुल। ग्राहक आता है, जो मेरा कस्टमर आता है मेरी दुकान पे सामान खरीदने, है ना, जी वो जी। वो कस्टमर ही तो मेरे लिए सब कुछ है, सही राइट। बात है। ही इज जी एवरीथिंग जी फॉर मी। जी सो माई जॉब इज टू cater to the audiences. Now they are the end user of my job. जी। They are the end user of my services, right? So I really need to be very, very conscious about it, that I need to make them happy. बिल्कुल। They are everything for me. You understand? राइट राइट। I am absolutely nothing without them. Nothing. So I do not understand why actors are so arrogant sometimes, or why do they feel like God? I don't understand that. They are as common as anybody else, you know. Seriously. So and that is the reason that I am not very active on social sites, or this is my first Instagram live. The reason is राइट राइट। very simple, that if I do something, I do it from the bottom of my heart. Okay. वाह। I give it 100%, you know. If I am unable to give 100%, then I will not do that job. All right. So it's as simple as that. इंसेन लेवल ऑफ कमिटमेंट सर। Yeah, of course. That's what I feel. And I think this is the only thing that comes natural to me, Hitarthi, because I have seen everything, you know. I have been a pauper. I have been starving for food. I have seen every ups and every downs of life, you know. So there is a big time, you know, graph which uh, which is so relatable to me, you know, so relatable. Everything, you know, राइट राइट। everything. Even a, you know, beggar on the roadside attracts me so much, you can't believe. A beggar who is just begging on the roadside, he attracts me so much because I can relate with him, you know, and I can relate with Mukesh Ambani also. I have done everything. You understand? I have राइट been, राइट। yeah. So because I have been, and I will tell you one more thing, because this is, uh, it's a, you are from, you are a student. So I would like to tell you one more thing, that I am a very mad learner. You know, I go crazy to learn something. I'm mad about ओके। learning. You understand? Because या। I'll tell you something very weird, that when I was working in for a multinational company, I worked there for 9 years. You know, there were many people. You know, I think there were uh, 5 to 6
subordinates of mine who were Hmm. someone from National School of New York University, somebody Wow. from IIM Ahmedabad, and they used to work under me. Right, right. I was their boss. Okay, now it's an insight for you. Okay, that I was bossing around with people who were like 100 times more qualified than me. Right. मैं On मैं paper at least. ऑन पेपर मैं कभी भी स्कूल कॉलेज गया नहीं हूँ हिदारती, पता है तुमको? मैं गया नहीं हूँ, स्कूल कॉलेज गया ही नहीं हूँ मैं, आप समझे? अरे बाप रे। हाँ, लेकिन मैं जितना मैंने सीखा है ना, वो जी। स्कूल कॉलेज 10 बार जाके यानी 10 टर्म्स आप पढ़ाई कर लो, तब भी आप यानी क्योंकि मेरा कमिटमेंट हमेशा से लर्निंग के लिए रहा है. Learning जी। has always been my commitment. Learning Right. has always been my commitment. You understand? Absolutely. Not an institute, or not academically. I am not very sound. Okay. On paper, I Okay. am not very sound. मैंने जो हम्म। ग्रेजुएशन किया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में किया है. मेरे पास है ग्रेजुएट हूं मैं, ऐसा नहीं कि नहीं हूं, पर मैंने वो सही बात कॉरेस्पॉन्डेंस है। कोर्स, सही। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से किया, कभी वहां गया नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो जी। हमेशा जो लर्निंग का जो एक पागलपन है ना मेरे अंदर, वो आप सबको अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करनी चाहिए. क्योंकि सही जब वो बात। रहेगा ना, क्योंकि अगर मैं किसी IIM अहमदाबाद वाले को का बॉस बन सकता हूँ आज तक कभी भी किसी स्कूल कॉलेज में मैं गया नहीं, और मेरा जी जी। सबॉर्डिनेट जो था वो IIM अहमदाबाद और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया था, और वो मेरे अंडर में काम जी करता था. आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज पीपल. मैं उनका अप्रेजल लिखता था, मैं उनके फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल था. ओके, तो अगर मैं जी ऐसा जी। कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेन चीज जो है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है. जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, मेरे हिसाब से वो चीज मेन नहीं है. असली जो इंस्टीट्यूट है, असली जो कॉलेज है, वो आपके दिमाग के अंदर है. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे इसको कैसे यूज करते हैं अपने दिमाग को, आप कैसे लगातार ध्यान देते हैं पढ़ाई पे, कैसे आप लगातार सीखते हैं. कितने जी जी। ब्रिलियंट स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 99% अगर आपको मार्क्स आ गए तो आप ब्रिलियंट हैं, ऐसा नहीं है. सही। ब्रिलियंट स्टूडेंट वो होता है जो कि रियलिटी, जो आपकी जमीन पे, जो ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड, जिसको बोलते हैं हैंड्स अप्लाई ऑन. कर पाते हैं। हाँ, hands on, बिल्कुल बिल्कुल। so या if you राइट। are excellent hands on, then you are excellent. you know मैं उस राइट। मार्कशीट का क्या करूंगा अगर तुम इडियट हो, अगर तुमने बिल्कुल मेरा काम सही ढंग से किया नहीं. You do not know how to get things done. Okay, बिल्कुल and बिल्कुल। you are securing 99% marks. That is irrelevant, unimportant. एब्सोल्युटली। Okay, doesn't make any sense. But if you are able to get things done, okay, then that is the brilliance of a student. Okay, तो मैं बिल्कुल हमेशा हमेशा उस चीज पे ध्यान देता हूँ कि आप हमेशा जो रियलिटी है उसके साथ रहिए. जी। स्टे विथ योर रियलिटी. स्टे ट्रू टू राइट। योर सेल्फ. स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. यू अंडरस्टैंड? कभी भी एब्सोल्युटली। अपना, हाँ, कभी भी, जैसे मुझे ये पता है कि मैं मैं अंदर से क्या हूं. मैं कभी भी इस बात के लिए आपको आई एम नेवर गोइंग टू फेक एनीथिंग, बिकॉज आई एम नॉट फेक. सही है। जब मैं एक्टिंग करूंगा तो उस समय जब मैं फेक नहीं कर सकता, वो तो एक्चुअली फेक ही होता है ना. हाँ। अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूं तो फेक है. जी। मैं सचमुच का तो इलेक्ट्रिक शॉक लेता नहीं हूं ना, सही बात। सचमुच का सही तो बात। लेता नहीं, वो फेक है, राइट? बट बिल्कुल आई बिल्कुल। बट आई मेक यू बिलीव. यू नो यस तो यस वो यस हाँ, तो वो एब्सोल्युटली। है ना, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जब मैं उसको अंदर से फील करूंगा. जब मैं जी अंदर से जी फील करूंगा तभी वो होगा, राइट? तो इसीलिए मैं जी। हमेशा बोलता हूँ कि स्टे वेरी ट्रू टू योर सेल्फ. और वो जैसे इन माई केस, आई एम किलिंग माई सेल्फ. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज राइट आई डोंट वांट सानंद वर्मा टू एग्जिस्ट. आई डोंट वांट राइट। हिम. I just don't want him.
क्योंकि अगर सानंद वर्मा एग्जिस्ट करेगा तो अपने हर कैरेक्टर में सानंद वर्मा दिखेगा आपको। सही बात। समझ रहे हो ना? तो सानंद वर्मा को मैं चाहता ही नहीं हूँ कि एग्जिस्ट हो वो, इसीलिए आई कीप ऑन चेंजिंग, यू नो, मैं अपने या बिहेवियरल चेंजेस करता रहता हूँ। आप बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें करता हूँ मैं अपनी जी, लाइफ में, है, जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, वो सडनली कर दूंगा मैं। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा कैरेक्टरिस्टिकली आई कीप ऑन चेंजिंग। राइट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? है ना? जी 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 तो जी। हाँ, यानी बिल्कुल बिल्कुल। there is nothing predictable about me. There is nothing predictable about Sanand Verma. यू नो, वाह। ये हाँ, यही रीजन है कि जो चार मान लीजिए चार कैरेक्टर आप उठा लें, जैसे कि अनोखे लाल सक्सेना भाभी जी घर पे हैं, पुरुषोत्तम बरिया सेक्रेट गेम्स, जी 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 सत्यनारायण दुबे अपहरण, ठीक है, और पटेल पटाखा, ठीक है। जी जी ये जी। चार कैरेक्टर आप उठा लो, इन चारों कैरेक्टर में मेरा लुक सेम है। मेरा लुक सेम है, मैंने लुक राइट। चेंज ही नहीं किया है। बाल भी ऐसे ही हैं, क्लीन शेवन हूँ, वैसे ही भड़कीले कपड़े पहन रहा हूँ, सब कुछ सेम है। हाँ, बावजूद इसके आपको चारों कैरेक्टर में मैं अलग लगता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसीलिए अलग लगा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि एक्टर्स जो है वो प्रोस्थेटिक्स करके, मेकअप से, विग लगा लेंगे कुछ अलग टाइप का, मूछें लगा जी लेंगे, जी कुछ जी कुछ जी करके ना अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो सेम लगते हैं। जी क्योंकि जी जी क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है, उस एक्टिंग में वो फीलिंग नहीं डालते हैं जिसकी वजह से वो अलग लगे, है ना? जी वो नहीं डालते हैं। मेरा सेम जी। रहता है, सब कुछ सेम है, मेरा पूरा आउटलुक सेम है, मेकअप सेम है, कॉस्ट्यूम सेम है, सब सेम है, फिर भी मैं चार कैरेक्टर जो मैंने आपको नाम लिए, चारों में मैं आपको अलग अलग दिखता हूँ। तो वो इसीलिए होता क्या है क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं उसको दिल से अपना के, उसको फील करके बहुत ही ट्रूथफुली करता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टे वेरी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। क्या बात है सर, आपने जिस कमिटमेंट और जुनून से जो एक्सप्लेन किया है उससे ही पता चलता है कि आप कितने इन्वेस्टेड हैं अपने लाइफ में, कितना आप एफर्ट डालते हैं। और सही बात कही आपने कि पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित बनाना कोई, मतलब क्या बात है। ये बहुत कम सुनने में आता है हम स्टूडेंट्स को कि आप एफर्ट्स और लर्निंग पे कंसंट्रेट कीजिए। इट्स नॉट द इंस्टीट्यूट, इट्स नॉट द डिग्री। आप बिल्कुल सही कहते हैं। और जिस तरीके से आपने हमें बताया कि आपने करस्पॉन्डेंसी किया है और उसके बाद भी आप जो बिल्कुल ऐसे फ्लुएंटली जार्गन्स फेंक के बात कर रहे हैं, मतलब दैट इज अमेजिंग। क्या बात है, मतलब आई कांट फैथम योर ग्रेटनेस। आई कैन एब्सोल्युटली नॉट फैथम योर ग्रेटनेस। सो थैंक यू। आई मीन आई डेफिनेटली विश कि हम कभी ऑफलाइन मिल पाए। एक लास्ट टाइम आपके ऑडियंस के लिए आपको कोई मैसेज देना है, आप दे सकते हैं। हमारे मैं मिठीवुड फिल्म फेस्टिवल को कोई कुछ कहना है, आप कह सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वक्त में इस लाइव इंटरव्यू को देख रहे हैं, और जो लोग नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे हीरो हैं। ओके, आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू नो, आप सब लोग हीरो हैं। और हितार्थी, आपके केस में आप हीरोइन हैं, यू नो। थैंक यू। तो और वो ऐसे कि हम सब की जो जिंदगी है ना, ये एक फिल्म है। आपकी जिंदगी भी एक फिल्म है, फिल्म, ठीक है। और उस जी फिल्म की प्रोटेगनिस्ट आप हैं। जैसे मैं जी अपनी फिल्म का प्रोटेगनिस्ट हूं, वैसे आप अपनी फिल्म की प्रोटेगनिस्ट हैं, ठीक है। जी हम सब जी अपनी अपनी फिल्मों के प्रोटेगनिस्ट हैं, हम सब अपनी अपनी फिल्मों के हीरो हैं और हीरोइन जी है, नायक जी। जिसको बोलते हैं। ओके, हाँ सेंट्रल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, वो हम हैं। जी। अगर अगर मैं तुम्हारे ऊपर फिल्म बनाऊंगा हितार्थी, तो सेंट्रल कैरेक्टर तुम बनोगी ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तुम्ही तो वो जी तुम्हारी एक फिल्म चल रही है। क्योंकि ये मिठीवुड फिल्म फेस्टिवल है, इसलिए मैं फिल्म के जी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जी कि हम सब की एक एक फिल्म है और हम सब हीरो हैं उसमें। बस आपको अपने हीरो को पहचानना है, आइडेंटिफाई दैट हीरो विद इन यू। ओके, जस्ट वाह। आइडेंटिफाई दैट हीरो एंड adore him or her, worship him or her, keep on
feeling proud of yourself without letting anybody else know that you are really proud of yourself, you know, because then people will feel that you are arrogant, you know. Right. So you should not let others know, Hitarthi, that you are proud of yourself, but feel proud of yourself, because trust me, there is a filmmaker to whom we have never seen. Okay, that filmmaker is that Almighty. Okay? Right. Who created everything, that supreme power, and that जी. filmmaker has made all of us, हम सब के सब फिल्म हैं अपने अपने, और हम सब हीरो हैं अपनी जगह पे. मैं अपनी फिल्म का हीरो हूं, तुम अपनी फिल्म की हीरोइन हो, ठीक है ना. तो अपने आप को हीरो समझो, हीरो. कोई किसी से कम नहीं है, सब हीरो हैं, सब एकदम टॉप क्लास हैं, क्योंकि सबका फिल्म मेकर एक है, एक वो ऊपर है कहीं, पता नहीं कहाँ पर है. ओके, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं हर दिन कोई ना कोई ऐसा कोई इंसिडेंस मेरी लाइफ में होता है. मुझे लगता है कोई इंसिडेंस तो 6 महीने में एक बार होते हैं. मेरी लाइफ में हर दिन कोई ना कोई इंसिडेंस होता है. तो मुझे लगता है ये स्क्रिप्टेड है यार, ये तो फिल्म में होता है ऐसा. ये स्क्रिप्टेड है ना. तो फिर वो स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? तो यानी कोई ना कोई लिख रहा है, ऊपर वाला लिख रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा है वो. तो बी वेरी वेरी good to yourself, stay happy, stay calm, and go with the flow. Just go with the flow, and God is there to take care of everything. क्या बात है सर. थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ आए. मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट ले लूं याद रखने के लिए. डेफिनेटली, एक अच्छा सा. थैंक यू सर. हम चाहेंगे, मैं बहुत तहे दिल से चाहती हूँ कि एक ना एक दिन हमारी ऑफलाइन भी मुलाकात हो. बिल्कुल महफिल जम जाएगी. आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है. कभी भी आप मुझे बुलाइए ना, मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, डोंट फॉरगेट. आप कभी भी बुलाओ, आपको मुझसे कुछ भी चाहिए, कोई भी काम है, कुछ भी एनीथिंग, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग, यू नो, बिकॉज आई लव यू ऑल. आप लोग ही तो मेरे भगवान हो, और क्या. आप लोगों की वजह से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ, सब आप लोगों की वजह से ही हूँ. आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, वरना मेरी क्या औकात है. मैं कुछ नहीं था और ना हूँ, अभी भी कुछ नहीं हूँ. अगर आप लोग नहीं है तो मैं क्या हूँ? कुछ नहीं, है ना. तो आप लोग जब बोलेंगे, मैं हमेशा आप लोगों के लिए रेडी हूँ. क्या बात है सर. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आप आए. और बस ये मतलब दिन बन गया, साल बन गया. कहने मतलब क्या कहूँ मैं अब. मेरे लिए भी दिन बन गया है हितार्थी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी on your Absolutely, sir. Love you all. Hope to see you soon. Once again, hopefully offline. Definitely. And bus, I would like to thank Mithi Wood, our sponsors, Hiker Wolf, and we have also Neuromonk. So thank you so much, sir. Thank you so much, Mithi Wood, and thank you for blessing us with your presence, sir. I feel very, very, very privileged. Thanks a lot, my dear. Thanks a lot. God bless you. चाहेंगे कि फिर मुलाकात होगी, मिलते हैं. 100%. Bye. Bye.